Hello everyone, I Gaurav Verma, Assistant Professor of Narayana Group of Institution, welcome you all to the channel. I will provide you video lectures related to Department of Biotechnology. Today we have discussed a topic that is stoichiometry, which is a very important topic in a bioprocess engineering. So let's start the lecture. Stoichiometry is generally a section of chemistry that involves using relationship between a reactant and product in a chemical reaction to determine, despite quantitative data, it derives from two Greek words that is stoichion and metron, in which stoichiones means elements, metron means measure of elements. In order to use stoichiometry to run calculation about chemical reaction, it is important to first understand the relationship that exists between a product and a reactant, which requires how to balance a reactor. So first we have to discuss a balancing in a bioprocess engineering. So what is balancing? In a chemistry, a chemical reaction are frequently written as equation using chemical symbols. These reactants are displayed on the left side of the equation and the product are shown on the right side, with the separation of either or single or double arrow that signifies the direction of reactions. The significance of single and double arrow is important when discussing solubility contrast, but will not go into the detail about this module. To balance an equation, it is necessary that there are the same number of atoms on the left side of the equations as the right. Okay. So, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो हमेशा क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट with the help of some catalyst or enzyme, a cofactor, will be converted into product. तो रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, जिसको हमने यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस O2 दैट इज इनपुट से दिखाया जा रहा है, और इधर जो भी प्रोडक्ट हमारा कन्वर्ट हो रहा है, सपोज दैट जो प्रोडक्ट है हमारा उसके साथ कुछ बायोमास प्रोड्यूस होगा और कुछ CO2 होगा और कुछ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, उसको हम आउटपुट कह सकते हैं. तो बेसिकली कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में कब आएगा? जब उसका इनपुट आउटपुट के बराबर हो. तो स्टोइकियोमेट्री में भी जो आपका स्टोइकियोमेट्री है बेसिकली वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है. तो जब हम बैलेंसेस की बात करते हैं तो बेसिकली हम एलिमेंट बैलेंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस की बात करते हैं, मास बैलेंस की बात करते हैं, एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं. तो हम सबसे पहले एलिमेंटल बैलेंस की बात करेंगे, जिसको हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं. तो लिखा हुआ इसमें जैसे कि आपने देखा कि टू बैलेंस द ऑल एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट टू द साइड ऑफ प्रोडक्ट साइड. ओके, आई रिपीट इट, टू बैलेंस ऑल एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड to product side, that is input equals to output. So in a reactant side, reactant will be converted into something a growth factor or product. ठीक है. There are some qualitative relationship between a reactant and a product. So on reactant side, suppose there is some carbon source, oxygen source, nitrogen source. Carbon source consists of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. It will be denoted by some coefficient like W, X, Y, Z. Oxygen is an O2, which is further multiplied by A, and nitrogen source, that is HON, that is hydrogen, oxygen, nitrogen, will be converted into a biomass. That will be a CHON. We use a symbol like alpha, beta, delta to denote the moles of hydrogen, oxygen, nitrogen or number. That's it. CO2, H2 and product. So basically जो सबस्ट्रेट है वो सिस्टम से प्रोडक्ट में न्यू सेल में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ उसके साथ ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो जब हम इसका मटेरियल बैलेंस करेंगे या एलिमेंटल बैलेंस करेंगे तो सपोज दैट एक रिएक्शन है, फॉर एन एग्जांपल CHO प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजनस कंपाउंड
is converted into the biomass and H2O and CO2. So suppose we have to balance this equation. So first we have to write the reactant side, that is कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ठीक, तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन में क्या करोगे आप, आपको बैलेंस करना है कि कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है. तो आप क्या करोगे कि जब आप कार्बन के लिए बैलेंसिंग कर रहे हो तो ऊपर जो आपका ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है उसमें देखो लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में देख सकते हो कि कार्बन के आगे आपका ए जो है एक कोफिशिएंट दिया हुआ है यहाँ पे. तो लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका एक कार्बन है तो उसका ए, कार्बन मल्टीपल बाई ए, तो आपने लेफ्ट साइड में उसको ए कर लिया. ठीक है, अब आप राइट साइड प्रोडक्ट साइड देखो तो कार्बन यहाँ पे है, कार्बन है बट इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको 1 लिख लिया, प्लस ये CO2 का जो कार्बन है वो E से मल्टीपल है. ठीक है, तो इसको प्लस E लिख लिया. तो ये आपका बैलेंसिंग हो जाएगा A इक्वल्स टू 1 प्लस E कार्बन के लिए. इसी तरह जब आप हाइड्रोजन के लिए करोगे तो हाइड्रोजन के लिए देखो, आ जाओ फिर से, HX लिखा हुआ है तो X इंटू ए हो जाएगा. देखिए AX लिखा है प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे भी है जो कि आपका क्या है, L है, यहाँ पे हम L से डिनोट कर रहे हैं तो L इंटू सी हो जाएगा. तो प्लस LC या Cl लिख दिया लेफ्ट साइड में. अब चलते हैं राइट साइड में, देखें कहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जिसपे आपका जो आपका कोफिशिएंट है वो बीटा है, तो आपने राइट साइड में क्या लिख लिया, बीटा प्लस H2O, तो 2D, तो 2D यहाँ लिख लिया. इसी तरह फिर ऑक्सीजन के लिए चलेंगे तो ऑक्सीजन के लिए देख सकते हैं क्या हो जाएगा, Y इंटू ए प्लस यहाँ पे भी है प्लस 2B हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए. फिर आप चल सकते हो यहाँ पे देखो M लिखा है तो M इंटू सी हो जाएगा. राइट साइड चलते हैं, प्रोडक्ट साइड देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, गामा, गामा से लिख लो, प्लस कर लो, और कहाँ ऑक्सीजन है ये, तो D, तो इसका D भी ऐड होगा, प्लस 2 ऑक्सीजन इंटू E दैट इज 2E, तो आप 2E को ऐड कर लो. फिर लास्ट जो है आप नाइट्रोजन के लिए इसी तरह कर लो. तो नाइट्रोजन के लिए क्या है, इधर रिएक्टेंट साइड में एक नाइट्रोजन है तो N इंटू सी कर लो, और इधर नाइट्रोजन आपका डेल्टा से डिनोटेड है तो Cn इक्वल्स टू डेल्टा. तो आप जैसा कि देख रहे हो कि आपको 4 इक्वेशन मिल चुके हैं, और इक्वेशन के साथ एक आपको टर्म जानना है जो कि है रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट, जिसका मतलब होता है मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म अपॉन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, यानी कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए. तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ अपॉन कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है. तो इसको हम देख सकते हो कि यहाँ पे CO2 के लिए E है, CO2 के लिए E है और ऑक्सीजन के लिए B है, तो यहाँ पे E बाई B कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको ले लिया तो आपके पास क्या हो गया, 5 इक्वेशन हो गया, 5 कोफिशिएंट हो गए, दैट इज ABCD जो आपने लिया था, और E, ये आपके 5 इक्वेशन बन गए और 5 कोफिशिएंट. इसको आप कैल्सी से या चेन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो ABCD E की जो वैल्यूज हैं वो मिल जाएगी और रिएक्शन में उसको. अब आप एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं. सपोज डैट की ये रिएक्शन दिया हुआ है C16H34 प्लस AO2 प्लस BNH3 इक्वल्स टू जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका वो बन रहा है CH1.66O.27N.20 प्लस DCO2 प्लस EH2O. यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में RQ की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.43. तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 दिया हुआ है, आपको 4 इक्वेशन बनाना है आप कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए. तो जो देखो कार्बन के लिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था, इसी फॉर्मूले पे चलना है. कार्बन लेफ्ट साइड में देखो क्या है 16, तो यहाँ 16 लिख लिया. राइट साइड में और कहीं कार्बन नहीं है लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट में. प्रोडक्ट साइड चलते हैं, प्रोडक्ट साइड में देखिए कार्बन क्या है, कार्बन पे C है तो C कर लीजिए, और यहाँ CO2 है तो D, तो ये हो जाएगा C प्लस D. इस तरह हाइड्रोजन के लिए कर लीजिए, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 34 प्लस यहाँ भी NH3 में 3 है तो 3 इंटू B, तो 34 प्लस 3B इक्वल्स टू हो जाएगा 1.66 इंटू C. प्रोडक्ट साइड में प्लस और कहाँ है 2E,
हाइड्रोजन के लिए देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूल से वो 2E हो जा रहा है। इसी तरह आप चलते हो ऑक्सीजन के लिए जब, तो ये हो जाएगा 2A, इधर राइट साइड में हो जाएगा 0.27 इंटू C प्लस CO2 का 2D। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए देख लीजिए, तो क्या होगा, इधर देखिए B है और कोई वैल्यू नहीं है इसकी, राइट साइड में 0.20 जो कि ऊपर डेल्टा ले रहे थे, तो ये आपकी वैल्यू दी हुई है 0.20, तो इसको मल्टीपल आप कर दोगे किससे, 0.20 इंटू C, तो ये आपका नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा। R की वैल्यू बोला ना कि पहले भी बताया था आपको कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है अपन, कितना ऑक्सीजन यूज्ड हो रहा है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए D यूज़ कर रहा है, ऑक्सीजन यूज के लिए A कर रहा है, तो ये DYA लिख सकते हैं, इक्वल्स टू इसकी वैल्यू दी है। अब आपका 5 इक्वेशन है, 5 अननोन है, इक्वेशन को कैलसी पे रखिए या सॉल्व कीजिए लीनियर मेथड से, तो आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। That's all for this lecture. In the next video, we will discuss about degree of reduction and yield coefficient. And last, do not forget to like, share, subscribe. Thank you. Jai Hind.